program? जी अंकल, the Sevas program. The youth Sevas. Facebook. Yes, the But Mera- normally it happens after silence. Am I right? yes, but this time we're doing in June. Okay, okay. This is the decision by the No, I was just checking. I was just checking. जी जी. Could it be part of vacation? Could it be partly because of vacation? College, school? Maybe, but I think mainly because we are having at MPR, so availability at the MPR was important. Oh, okay, okay, got it. Okay. Jai Baba. Jai Baba, everybody. Welcome to our good old Thursday program. Today, we have something unique in the sense we'd be showing a movie or clippings of it and then discussing, because the whole idea is to share something good that any of us discovers. In the beginning, I would like to call upon Janice to do the prayer. Janice, do the prayer, please. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक का अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाएं. और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. Thank you, Janice. Firstly, I would like to invite our Lord Mayor Baba to come and join us for this meeting, and also to please take over the entire proceedings of this meeting's duration. Thank you, Baba. One thing I'd like to mention is the scanty attendance of our members at the center. There is a lady present here who has come all the way from Andheri. But the people staying close by do not feel necessary to come to the center because they're comfortable watching at home. I don't know what is right, what is wrong. I leave it entirely up to Baba. जिसके तकदीर में है वो यहाँ पे आएंगे, जिसके तकदीर में नहीं है वो नहीं आएंगे. Today we are going to talk about a beautiful movie
or a kind of a documentary made on the 4 Arangao boys who are now very old men, and their interviews and their interactions and everything with Meher Baba. The simplicity and childlike nature is what comes out from this entire movie. And then the climax is when just before the documentary ends, and I urge you all to stay on till the end, because it's the most beautiful thing that I have ever come across. When I saw this, it just left me stunned. I had no words to describe. I was just stunned. So what I did was, मैं जाके बाबा के पिक्चर के सामने खड़ा हुआ और वही सोच में डूब गया. And then I experienced that kind of bliss. एक अनोखा सा आनंद मैंने महसूस किया जो मेरे आज तक की लंबी उम्र में मैंने कभी नहीं महसूस किया है. So I urge you all, ये मराठी में होगा ज्यादा करके क्योंकि they were locals from आरंगांव, और बीच में हम आपको बताते रहेंगे. If you have any questions or any queries, kindly raise your hand. Immediately we'll stop it and get to you. Thank you, and I hope you enjoy this movie. Jai Baba. Sam, are there subtitles for this movie? Haji, Are sorry? there subtitles? I don't think so, Ram. I couldn't see any subtitles. All Marathi. right. It's a very simple Marathi. No, it's in Marathi, so I'm sure everyone will understand. No, I It's don't in- speak Marathi. I don't understand. Marathi. No, you will understand. You will understand. It's very basic Marathi. All right. Okay. It's called My Merazat Boys. Baba's Merazat Boys. The ones you see in the turban. अवतार मेहर बाबा की जय. मैं आज यहाँ पर जो बाबा के बारे में, बाबा के साथ मैं था उसके बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बाबा की शपथ लेके बोल रहा हूँ. मैं सही सही बोल रहा हूँ. अवतार मेहर बाबा के पास मैं कैसा गया और कहाँ से गया. मेरा नाम माधव विठोबा कांबळे. मैं आरंगांव मेहराबाद में रहता हूँ और आरंगांव मेहराबाद का ही हूँ. हमारा दिन ऐसा जाता है, सवेरे से शाम तक हमें खाली बाबा का सवेरे उठने के बाद बाबा की प्रार्थना करते और बाबा का कभी कभी कुछ मौका मिल गया तो हम समाधि जाते. फिर बाद में कोई बाबा का कोई प्रोग्राम होएगा उसको हम बुलाए तो जाते हैं और वहाँ हम भजन बाबा का करते हैं. शाम के टाइम कभी कभी हमारे गांव में बाबा की सेंटर है, उसी को भी हम कभी गुरुवार और संडे को हम उसी को शाम के टाइम हम भजन के लिए जाते हैं बाबा के. और जाते उसी टाइम हमको इतना अच्छा लगता है कि वो टाइम हमारा इतना खुशी से निकल जाता है. आपका असली नाम क्या है, पूरा नाम? हमारा ना बप्पू नारायण देठे.
आयरन गाँव। और कब लगे आप बाबा के साथ, कौन से साल में? अभी इतना ख्याल नहीं ना, स्कूल छोड़ दिया। अभी हम सुबह को उठते, स्नान करते, बाबा का फोटो का दर्शन लेते और गाय लेके उधर जाते। हमारा दिन उधर से निकलता है, उधर हमको अच्छा लगता है। दो वहाँ के बाबा प्रेमी कुछ मिलते हैं, उनको थोड़ी बात बताते बस। बाबा का मेहर आज़ाद में कड़क एकांतवास 3 महीने का था। तो जब भी पिंडू शेठ, येरे शेठ, विष्णु मास्टर इधर मेहराबाद में आए, बाबा ने बोला तुम 3 महीने कडक एकांतवास आहे, त्याच्यामुळे मग तुम्ही मेहराबादला राहायला जा। विष्णू मास्तर, पिंडू शेठ, येरे शेठ हे 3 जण इथं राहायला आले। आल्यानंतर पादरी शेठनी त्यांनी सांगितलं, विष्णू मास्तर त्यांनी, आम्ही इथं आलो पण आमचे कपडे कोण धुणार, रूम कोण झाडणार, त्याच्यामुळं आम्हाला एखादा मुलगा बघा। मग पादरी शेठनी नाना भाऊला सांगितलं का गावामध्ये जाऊन एखादा मुलगा कामाकरता बघा आणि 3 महिने मेहराबाद में राहायचं, परत इकडं गावामध्ये जायचं नाही आणि काही नाही। पादरी शेठनी निरूप हरिभाऊजवळ दिला, नाना कोवळ्याजवळ। नाना कोवळ्याने मग मला येऊन सांगितलं का तुला पादरी शेठनी बोलावलं। बोलावल्यावर मग मी आलो। मग पादरी काका म्हणले इथं 3 महिने राहावं लागन, गावामध्ये जायचं नाही ना, काही नाही, तुला जेवण खावण सगळे इथं मिळणार। पिंडू शेठ, येरे शेठ, विष्णू मास्तर यांचे रूम झाडायचे, खोल्या झाडायच्या। आणि मग मी म्हणलं हो येईन। मग मी लगेच कामाला दुसऱ्या दिवशी आलो। मग पिंडू शेठ, येरे शेठ यांची आमची ओळख झाली आणि मग मी काम करायला लागलो। तर 3 महिने एक नाना म्हणून होता, तो स्वयंपाक करायचा आणि मी रूम बीम झाडून येरे शेठ, पिंडू शेठ यांचे कपडे बिपडे धुवून असे बरंच। मग 3 महिने होऊन गेले। 3 महिने होऊन गेल्यावर मग पिंडू शेठ, येरे शेठ हे आणि येरे शेठला 40 दिवसाचा उपवास होता। 40 दिवस खाली लिंबू पाणी पिणे का। पिंडू शेठ, येरे शेठ, विष्णू मास्तर हे म्हणले आता आम्ही मेहर आझादला जाणार। पिंडू शेठ आणि येरे शेठ हे तिथं मेहर आझादला गेल्यावरती बाबांना त्यांनी विचारलं का बाबा आम्हाला त्रास होतोय, कपडे धुवायचे, रूम झाडायचे, कंदील हे सगळं साफ आम्हाला करावं लागतं, तर आमच्याकरता एखादा मुलगा तुम्ही बघा। तर ते म्हणले बरं तुम्हाला सांगा तुम्ही। मग त्यावेळेस काय फोन बिन काहीच नव्हते, फक्त चिठ्ठी लिहायचे। चिठ्ठीवर मग आदिशेठ तिथं ट्रस्ट ऑफिस आहे नगरला, तिथं आदिशेठ सेक्रेटरी होते। तर मग ते नेहमी पिंपळगावला ये जा करायचे बाबांकडे, कागदपत्र टपाल बिपाल सगळं। मग असं करता करता मग बाबांना त्याने विचारलं, विष्णू मास्तरांनी त्याने, बरं बाबा म्हणले मग असं करा, पादरी शेठला चिठ्ठी लिहा आणि आरणगावचे मुलं आम्हाला कामाकरता इकडे मेहर आझादला पाठवून द्या। मग आदिशेठने पादरी शेठला चिठ्ठी लिहिली आणि मग पादरी शेठनी नाना भाऊला घरी पाठवलं माझ्या। मग नाना भाऊ आला, मला म्हणला पादरी शेठनी तुला बोलावलं।
मग मी पादरी शेठकडे आलो. पादरी शेठकडे आल्यानंतर पादरी शेठ म्हणले तुम्हाला मेहर आझादला कामाला जावं लागेल. म्हणलं जाऊ कामाला. मग कधी जायचं तर ते म्हणलं उद्या. तर म्हणलं मग मी एकटा नाही जाणार, मला जोडीदार पाहिजे. कारण त्यावेळेस एवढं जंगल होतं का लाईट नाही ना काय नाही, सगळं जंगल. लोक भ्यायचे जायला आणि यायला. तर मी म्हणलो आम्ही दोघं, एक मुलगा मला जोडीदार मी बघतो आणि मग नंतर आम्ही दोघं येऊ. मग काय केलं, मी घरी गेलो. माधव कांबळे म्हणून त्याला म्हणलो चल वो, आम्ही तेव्हा लहान होतो, असं नाही. सातारा में जो एक्सीडेंट हो गया था उसी टाइम बाबा मेहर आज़ाद में रहने आ रहे हैं और रहने को आते थे और उसी टाइम मंडली के साथ और जेंट्स के साथ बाबा मेहर आज़ाद में रहते थे. बाबा ने बोला अभी इधर रहते हैं आप तो मंडली का जो दूध लाने का, जो सब्जी लाने का, जो कुछ साइकिल के ऊपर जाने का, वो करने के लिए तुम पिंडू जी को बोले तुम ऐसा कीजिए कि आदि को बोलो और हमारा जो मेहराबाद है वो मेहराबाद के दो छोटे छोटे बच्चे कि जिसको बाइसिकल चलाने की आती होंगी उसको आदि को बोलना यहाँ पर मेहर आज़ाद लेके आना. तो आदि काका यहाँ पर कार लेके आए और कार लेके सीधा हमारे जो काका बहुत 2-4 आदमी काका के बाजू में 2-4 आदमी बैठे थे. वो उसको मराठी में चावड़ी बोलते. वो चावड़ी के अंदर बैठ रहे थे और बातें कर रहे थे. तो वो मंडली को आदि काका ने जो कहा कि अरे हमको बाबा ने भेजा है और यहाँ कोई छोटे छोटे 2 लड़के मिलेंगे क्या कि बाबा मेहर आज़ाद में रहते हैं और उनकी मंडली के लिए जो कुछ सब्जी वगैरह दूध लाने के लिए और मंडली का जो कुछ काम होएगा वो काम करने के लिए 2 अच्छे लड़के बाबा ने बोला लेके आओ. वो भी मेहराबाद के लेके आओ. बाबा ने जो हमको संदेश दिया है हमारे दोनों को जो पहले कर्म में जो काई अच्छे कर्म किया हो तो हमने हमारे नाम वो हमारे काका ने बोला कि वो माधव करके अच्छा लड़का है और उसके साथ वो बापू देठे ये भी अच्छा है, वो दोनों को तुम लेके जाओ ऐसे आदि काका को बोले. फिर आदि काका और हमारे जो काका कान्हू कामले और भाऊ कामले, लाला कामले, ये आदि काका के साथ नदी के ऊपर आए. नदी बोले तो वो पानी का जो घोड़ा रहता है उनके उसके पास हम जानवर संभालते थे. तो उसी के पास आदि काका को लेके आए. तो हम वो कार देख के इतने घबर गए कि अपने को पकड़ने के लिए ये कार में आदमी लोग आ रहे. तो वो कार के अंदर जो कार खड़ी रही और उसके अंदर से मेरे काका जी और आदि काका नीचे उतर गए. तो हमने देखा कि ये अपने काका है, ये काय के बारे में इधर आ गए. तो वो काका ने नाम लेके माधव और बापू नजीक आ जाओ, तुम घबराओ मत. तो हम नजीक चले गए. तो उसी टाइम हम कैसे चले गए, हमारे जो कपड़ा था आंख के ऊपर वो हम धो के गीला थे और सूखने के लिए डालते थे और हम ऐसे बिना कपड़े से आदि काका के पास चले गए. आदि काका के पास चले गए तो वो आदि काका ने बोला तुम बाबा के पास काम करने के लिए आज आएंगे. तो जब आदि काका ने बाबा का अवतार मेहर बाबा का जो नाम लिया कि तुम दोनों बाबा के पास आएंगे तो हम बड़े खुशी हो गए. मैं बोला, हम बोले, दोनों भी बोले आते हैं बोले. तो आदि काका ने बोला कपड़ा डाल के गाड़ी में बैठ जाओ. तो हमने वो गीला कपड़ा आंग में डाल दिया और गाड़ी में बैठ गया. ना
मम्मी को पूछा न पापा को पूछा, लेकिन इतनी खुशी हो गए, इतनी खुशी हो गए कि हम पापा के पास भी नहीं गए और गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठ गए तो वो काका को बोले, हमारे जो काका थे आदि काका के पास, उसको बोले कि मेरे मम्मी पापा को बोल दो कि हम बाबा के पास आदि काका लेके गए। फादर सीटच्या इथं आलो. इथून आम्हाला आधी सीट आले 9, 9:30, 10 वाजता. मग त्यांनी विचारलं, तुम्हाला बिछाने कपडे काय आहे का? म्हणलं काहीच नाही, खाली एक चादर. त्यावेळेस परिस्थिती बिकट होती, त्याच्यामुळे ते म्हणले बरं चला. मग आधी शेठ बरोबर आम्ही ट्रस्ट ऑफिसमध्ये गेलो. आधी शेठने तिथं थांबवलं आम्हाला. मग आधी शेठने काय केलं, आम्हाला 2-2 शर्ट, 2-2 पॅन्टी, नवीन कपडे घेऊन दिले. आणि मग आधी शेठ, माधव और मी, आम्ही तिघंजण मेहराजादला गेलो. मेहराजादला गेल्यावर आम्ही बाहेर थांबलो. आधी शेठ गेले. बाबांना सांगितलं का 2 मुलं आणलेले तारणगावचे कामाला. मग बाबा म्हणले त्यांना आत पाठव. मेहराजा चले गए तो उसी टाइम बाबा मंडली के साथ मंडली हाल में बैठे थे और आदि काका के पीछे पीछे हम बाबा के हाल में जा रहे दोनों भी, लेकिन बहुत डरते डरते आदि काका के पीछे पीछे जा रहे। फिर हाल में गए, फिर आदि काका ने बोल दिया, हमको अंदर बुला दिया और हम बाबा के सामने खड़े रहे। और आदि काका ने बोल दिया, बाबा आप बोले थे मेहराबाद के 2 लड़के, ये मेहराबाद के लड़के हैं और गरीब है और ये काम के लिए मैंने अपने बोलने से लाया है। तो बाबा हंसने लगे और बाबा ने पूछा, हमने नाम बता दिया, मेरा नाम माधव है। बापू ने नाम बता दिया, मेरा नाम बापू है। और बाबा ने एक ही इतना असली पूछा कि मैं कौन हूँ, कि मैं कौन है। तो हम बोले, बाबा मराठी में बोलते हैं, बाबा तुम्ही देव आहात। तो बाबा हंसने लगे, मैं भगवान है, ये कैसे तुमको मालूम है? तो हमने बोला, बाबा जब मेहराबाद आते थे उसी टाइम हम तुम्हारे पीछे पीछे भागते थे और हमारे माँ बाप जब हमको बोलते थे कि बाबा देव है, बाबा परमात्मा है, बाबा भगवान है, तो इसलिए आप भगवान हैं। तो बाबा बड़े खुशी हो गए। उसी टाइम बाबा खुशी हो के बोले, तुम यहाँ रहेंगे? हो बाबा, हम यहाँ रहेंगे, जो कुछ काम बोलेंगे वो करेंगे। बाबा करेंगे काम, हम सब काम करेंगे। तो फिर उसी टाइम बारिया काका मेहराजाद में रहते थे, वो बाबा के मंडली थे। वो बारिया काका को बुलाया बाबा ने। फिर बारिया काका हाल में आके बाबा के सामने खड़े रहे और बाबा ने बोला, बारिया ये 2 आदमी, 2 बच्चे मेरे गांव के हैं। अभी कितना अच्छा लगता, बाबा क्या बोलते थे मेरा बात को, मेरा गांव है। तो ये मेरे मेहराबाद के, मेरे गांव के 2 लड़के हैं और इधर जो कुछ काम होएगा, जो मंडली का काम होएगा, ये इनसे बोलना और इनको अच्छा संभालना। और फिर बाबा ने हमको नज़दीक बुला दिया और एक चॉकलेट बाबा ने खुद ने, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब थे बाबा छोटे छोटे बच्चों को देखे थे, तो उसी टाइम बाबा बहुत खुशी रहते थे। तो हमको देख के बाबा खूब खुशी हो गए और हमको दोनों को एक चॉकलेट मुंह में डाल दिया। तो हमको बारिया काका से बोला कि अभी उनको लेके जाओ और उसी टाइम फर्स्ट टाइम ऐसे बोले, बाबा वो परमात्मा है, आपने कुछ किसकी गरज है, किसका ये जरूरी है, बाबा को सब पता है।
बाबा से मांगने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन बाबा जो खुद देता है वो अपन लेना है। तो बाबा बारे काको को क्या बोले उसी टाइम, तुम कुछ काम बोलने के पहले ये दोनों को खाना खिलाओ। बाबा ने क्या बोला, ये दोनों को पहला खाना खिलाओ। अभी मेरे को वो याद आती है और मुझे रोना आता है। क्यों कि हम सवेरे से भूखे थे, घर में कुछ खाना नहीं था, बिना खाना न खाए हम बाबा के पास चले गए। तो वो परमात्मा ने बोला, बारिया इनको पहला खाना खिला। जब बाबा बोले खाना खिलाओ, हम बहुत खुशी हो गए। खुशी हो के बारिया के पीछे पीछे हम चले गए और बारिया काका ने किचन में लेके गया और उनके हाथ से हमको खाना दिया। और इतना खाना दिया, पहले टाइम फर्स्ट टाइम पेट भर के खाना खाया और हम बहुत खुशी हो गए। वैसा खाना हमारे घर में नहीं मिलता था और वैसे जो खाना मिला है वो इतना अच्छा मिला। तो वो खाने की अभी हम बुढ़ा हो गए, हमको याद आती है जो पहला खाना बाबा ने खिलाया है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि वो असली खाना बाबा ने खिलाया, तब से अभी तक दिन भर मैं भूखा रहा तो मेरे को भूख नहीं लगती। जो परमात्मा ने फर्स्ट टाइम खाना खिलाने के लिए बोल दिया। काका बार्याला भेटलो, काका बार्याने सांगितलं, त्यांनी दाखवले हे सगळे रूम झाडावं लागते, मंडळीचे कपडे धुवावं लागते, कंदील आहे, लँटन, लाईट नाही थी जबी, लाईट नव्हती तेव्हा तर मग ते कंदील साफ करायचे, घासलेट भरायचं, प्रत्येकाच्या रूममध्ये नेऊन ठेवायचं. असं करता करता बरेच दिवस झाले. मग आम्ही कामामध्ये एकदम ट्रेन झालो. ट्रेन झाल्यावर मग एक जण दूध आणायचा, पहाटे 4ला जायचं दूध आणायला. मग आम्ही तिथं आम्हाला काय काम होतं, भांडे घासायचे, कपडे धुवायचे, रूम झाडायचे. असे करता करता बरेच दिवस गेले. आणि बाबांनी सांगितलं होतं, फक्त आता तुम्ही 3 महिन्याकरता इथं कामाला आलात. बरं म्हणलं 3 महिने तर 3 महिने. त्यावेळेस काय परिस्थिती बिकट होती, खायला काहीच नाही. बरंही खायला भेटतंय चांगलं हे. मग दर दिवस आम्ही काम करायचं. असे बरेच दिवस झाले. Jai Baba. So far, we have seen these two boys, how they've been chosen and picked up and been taken in service of Baba. When I keep seeing this video again and again, all the small niceties come out. One that struck me this time when I was watching it was, okay, these two boys had no clothes on when they were accepted into Baba's work. They had washed their clothes and they were just roaming around, and Baba picked them up. I mean, Baba had them picked up. And what I'm trying to say is, when God chooses his own people, he accepts them in total reality, whichever form that they are in. Now they will be narrating about their work experiences, etc., etc. Unfortunately, this movie is 1 hour and 24 minutes, and we don't have that much of time. So we will fast forward a bit.
and we will go into certain niceties like when this एक time Madhav Kamble was given this job of looking after the kitchen, chai का सामान वगैरह. तो एक दिन when he was having the milk boiled, वो ऐसे ही खड़े रह के वो दूसरी हंडी के ऊपर ऐसे ताल दे के तबला के जैसा बजा के कुछ गुनगुना रहा थी. And Baba happened to pass by along with Dr. Goher. और बाबा ने गोयर से कहा कि ये देख, ये माधव क्या ढपढपा रहा है इधर. तो गोयर जाके अंदर देखी और उन्होंने देखा कि ये माधव ऐसे वो हंडी के ऊपर थपथपा रहा है. में बाबा आए वहां पे और माधव जरा डर गए थे. तो बाबा ने बोला कि तेरे को ये शौक है ये गाना बजाने का. तो बोला बाबा मैं तो कुछ खास जानता नहीं इसके बारे में, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ये करता हूं. तो उस समय बाबा ने उनको बोल दिया, he granted him that boon कि तेरे को संगीत आ जाएगा. And ever since then ये माधव हारमोनियम और तबले और सिंगिंग तीनों चीजें अपने आप सीख लिए. He did not attend any classes or any किसी के instructions वगैरह कुछ नहीं, अपने आप प्रैक्टिस करते करते he today sings, plays the harmonium and plays the tablas. So this was one of the boons that was granted to one of these boys. Then there is another story where एक टाइम क्या हो गया था कि आलोबाजी चाय बना रहे थे. वो सुबह जल्दी 4 बजे तो दूध लाना पड़ता था और 5, 5:30, 6 बजे में वो चाय बॉईल सब कुछ बॉईल करके चाय तैयार करने की रहती थी. तो आलोबाजी was in a hurry and he did not notice, उन्होंने देखा नहीं कि there was a lizard fallen in the milk container. और वो बॉईल करके उसके अंदर चाय का भूकी, पानी, शक्कर सब कुछ मिला के सब ये करके चाय तैयार कर दी. और फिर माधव को बुला के बोला कि सब लोग को बुलाओ और सबको ये चाय दे दो. तो माधव ने सबको जब चाय देने गया तो जो लोग आधा कप पीते थे वो भी उस दिन पूरा कप मांग के पीने लगे. Everybody drank that contaminated chai. ये मालूम कब पड़ा कि वो बापू जब बर्तन घासने गए तो उनको वो जो लिजर्ड, वो जो छिपकली जो बोलते हैं, उसका स्केलेटन मिला. तो उन्होंने तुरंत ये डॉक्टर गोयर को बुलाया और बोला कि ये इसमें से तो मुझे ये मिला है. तो गोयर एकदम चमक गई, बोले ये तो एकदम पॉइजनस चीज है, इसका विष अगर किसी को चढ़ जाए तो आदमी मर जाता है, तो अभी क्या करने का. तो गोयर ने बापू को बोला कि तू चुप रहना, कुछ नहीं करना, मैं जाके बाबा से खेल देती हूँ. और जब उन्होंने बाबा को कहा तो बाबा ने वो एक्सेप्ट कर लिया और नथिंग एट ऑल हैपेंड टू एनीबॉडी. किसी को कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ. So that is one of the other things which I wanted to highlight.
Then there are very many incidents where these boys were not allowed to go anywhere without the permission from the Mandli people or from Baba. उनके परमिशन के बगैर कभी जाने का नहीं था. तो एक टाइम उनके दोस्त लोग ने बोला कि ये जो अपनी सेक्लूजन हिल के बाजू का जो ये है, उधर वो खंडोबा का मंदिर है ऊपर, वहां पे कुछ मेला था. तो वो लड़कों के दोस्तों गांव के लोगों ने पकड़ के उनको साथ में ले जाने को कहा. इन्होंने कहा कि हमें अलाउड नहीं है, फिर भी वो जबरदस्ती करके उनको लेके गए. वो लोग ऊपर गए और रात को बड़ी देर से वो आए थे. उस दरमियान क्या हुआ, बाबा ने काका बारिया को भेजा कि जाके देख वो दोनों, दे हैड अ रूम, वो दोनों सोए हैं कि नहीं. तो बारिया काका गए और देखा तो रूम में वो बिस्तर लगा था लेकिन खाली था. nobody was there. So he came and told Baba. Then Baba kept quiet. फिर जब भाऊजी वॉचमैन के लिए वॉच के लिए आए तब उनको वापस भेजा और बोला जाके देखो दो लड़के किधर है, सोए हैं कि क्या. अगेन भाऊजी केम एंड सेड कि भाई दे आर नॉट देयर. आखिर में बाबा gave up and this boys sneaked in quietly, and next morning सुबह 6 बजे they were lined up in front of Baba. बाबा ने बुलाया दोनों को और बोला तुम लोग कहाँ थे कल. ये लोग बाबा से बहुत डरते थे. तो पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर बाबा ने बोला कि बोलो बोलो कहाँ गए थे, क्या हुआ. तब दिस बॉयज नरेटेड कि हमारे फ्रेंड्स लोगों ने हमको, वो ऊपर मेला चल रहा था वहां, हमको जाने के लिए कहा तो हम लोग गलती से आपकी परमिशन के बगैर हमारे से चुकी हो गई, माफ कीजिए ऐसा. तो बाबा ने बोला मजा आया, ऊपर गए तो उधर सब वो लड़कियां नाच रही थी, वो पसंद आया तुम लोग को. तो ये लोग बेचारे चुपचाप वहां पे खड़े रहे. देन बाबा टोल्ड देम कि मैंने तुम्हारी जिम्मेवारी ली है मेरे पे, इसीलिए तुम्हें जो भी करना है मेरे पूछे बगैर कभी नहीं करना. एंड these boys then stuck to it. In this movie we see them carrying Baba on the lift chair as they call it. वो जो कुर्सी को हैंडल्स लगाते हैं और 4 जने आगे पीछे से उठा के चलते हैं. There are all sorts of small incidents narrated by all these boys who are now old men. One of them is dead and gone, bichara. 3 of them are left. And why I'm not screening the entire movie or showing it in 2 parts or whatever is, I'm very, very anxious to get towards the end part. So let us see a bit of the mid portion and then we will continue. Thank you. Sam, it's Perry. I have a question, please. Sam? Sam, I have a question, please. Haji, bolo. Sam, how old were the boys when they came to Baba, please? I do not really know how old. They must be 8, 10 years is what my rough guess would be. 10 years. Haji? 10-year-old. 10 years. This is Okay. my guess. I mean, they have not mentioned anything during. You watch this. We'll send the link. You may watch this entire movie. It's beautifully done. Yeah, please send it. It's wonderful. And thank you for sharing. Well- Really beautiful. Thank you.
Yeah, yeah. Jai Mer Baba. Wait till the highlight. I mean, the Oh, yes, yes, yes. No, I'm waiting, but it's a beautiful. Thank you for doing this. okay. You're talking about. Thank you. रूम से मंडली हाल में 4 आदमी, उनका नाम, फर्स्ट नाम माधु, बापू, शंकर और लक्ष्मण, ये 4 आदमी हम कंटिन्यू हर डे टू डे बाबा को उठा के लेके आने के। और लेके आने के आज जो बाबा को उठा के लेके आया, बाबा बोले पैर दुखता है, तो कल बाबा खुद ही चलते चलते मंडली हाल में आते थे। तो हम सोच रहे थे बाबा कल तो कुर्सी के ऊपर लाया और आज तो बहुत भागते भागते आ रहे बाबा। और वो परवरदिगर है, आज ऐसा वो कल ऐसा, वो परवरदिगर की कोई सोच न करे। और एक एक टाइम बाबा कुर्सी के ऊपर बैठे या न बैठे, हमको ऐसा लगने का, तो आगे वाला मानुस आदमी पीछे देखने का, बाबा कुर्सी के ऊपर से उतर गए, नीचे उतर गए कि क्या, बाबा तो वैसे बैठे लेकिन कुर्सी क्यों ऐसी लगती है, बाबा बैठे नहीं ऐसी कुर्सी लग रही। तो वो परवरदिगर हमको दिखा रहा था मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ। तो हमारे बचपन से वजह से हमारे दिल में कुछ नहीं आते था, ये बाबा क्यों दिखा रहे हैं अपने को। जब हमको खुली कुर्सी लगती थी तो हम इतने भागते थे, इतने भागते थे, तो बाबा ताली बजाने के, और वो इतने भागते, तुम मेरे को लेके जा रहे, तुम भी गिरेंगे हम भी गिरेंगे, जरा हल्की हल्की और धीरे धीरे से चलो ना। तो हम नहीं सुनते थे, जब बाबा हल्के लगते थे उसी टाइम हम इतना स्पीड में चलते थे। तो एक टाइम जब हल्के लग गए, उसी टाइम बाबा हाल में हम छोड़ दिया और बाबा वो कुर्सी के ऊपर बैठ गए। बाबा ने एरज को बोले वो 4 ही आदमी को बुला लो। तो हम आवाज़, एरज भाई ने आवाज़ दिया,
तो हम घबर गए। क्यों घबर गए? कि हमको बाबा गुस्सा हो जाएंगे। बहुत कुर्सी भगाया। बाबा तो बार बार बोल रहे कि धीरे से चलो, अपन तो सुनते भी नहीं। हम डर के मारे हाल में चले गए। डर के मारे हाल में चले गए तो बाबा अभी कुछ तो भी अपने को शिक्षा देंगे। ऐसे गए और हाल में जाते जाते बाबा ने बोले, 4 ही आदमी ऐसे दीवार के बाजू में खड़े रहो। तो हम 4 आदमी, पहला 1 नंबर को शंकर खड़ा रहा, 2 नंबर को लक्ष्मण खड़ा रहा, 3 नंबर को माधु खड़ा रहा और 4 नंबर को बापू खड़े रहे। ऐसे हम लोग खड़े रहे। खड़े रहने के बाद उसी टाइम बाबा हमको देख के हंस रहे। और हंस रहे बोले तो वो गुस्सा क्यों हो जाएंगे? हमारी जो डर थी वो निकल गई। डर निकल गई। बाबा आज कुछ नहीं बोलेंगे। बाबा तो हंस रहे और अपन तो बाबा बोले ये कुर्सी भगा रहे, बाबा गुस्सा करेंगे। बाबा तो अपने को देख के हंस रहे। ये हमारे दिल में आ गया। हम किसी को बोले नहीं, हमारे दिल में आएगा तो हम सीधा सीधा खड़े रह गए। और उसी टाइम जो असली चीज़ बाबा ने बोला कि आज मैं तुम्हारे 4 आदमी के ऊपर इतना खुश है कि जो आज तुम मांगेंगे वो मैं तुम 4 आदमी के लिए दे दूंगा। बाबा ने तो बोला तो हम तो कुछ बोल रहे नहीं। फिर बाबा बोले ऐसे नहीं बोलेंगे। एरज भाई को बोले एक एक आदमी को पूछो, फिर वो बोलेंगे क्या मांगता है तो वो मैं दूंगा उसको। तो बाबा ने पहला शंकर को बोले, शंकर बाबा बोलते हैं मैं खुश है और तुमको क्या मांगता है वो बोलो, आज मैं तुझे दे दूंगा। शंकर को बोल दिया तो शंकर ने सही बोला, बाबा मेरे को ज़मीन लेना है, आधा पैसा मैं ज़मीन के लिए भर दिया और आधा पैसा बाकी रह गया वो मुझे देना है। तो बाबा ऐसा बोलने के बाद बाबा ने ताली बजा दिया। बाबा को बहुत खुश हो गए और पिंडों की ये खून है, पिंडों को बोले इतना कितना पैसा लगता है वो पैसा उसको दे देना। 2 नंबर लक्ष्मणला विचारलं की लक्ष्मण तुला काय पाहिजे? तर लक्ष्मण हा पहिल्यापासून खरा माणूस होता आणि आम्हाला खूप आठवण येते लक्ष्मणची, शंकरची आठवण येत नाही। आणि लक्ष्मणची आठवण काय येते की लक्ष्मण खरा वागला म्हणून त्याला बाबांनी खूप मोठा आशीर्वाद दिला। लक्ष्मण खरा बोलला की बाबा मला घर नाही राहिला, मला घरासाठी पैसे पाहिजेत। तर बाबांनी टाळी वाजवली, पेंडे शेठला सांगितलं की याला घरासाठी पैसे काय द्यायचे असतील ते देऊन टाका, तुम्ही दोघं जण। बरोबर दिले म्हणलो। फिर मग काय झालं पुढचं सांगा? मग दिले ना पैसे आम्हाला। पुढे उसके बाद क्या हुआ? त्याच्यानंतर काय झालं? त्याच्यानंतर मग काही नाही, मग आपलं कामच करायचं आम्ही। इनका पता है? नाही ते बाहेर गेले ना, बाहर गए। बाहर बाबा बोले इनको बाहर जाने दो। अभी 3 नंबर माधु को बोल दिया, माधु तेरे को क्या मांगता है? एरज भाई मेरे से बोल रहे, बाबा हाथ वारे कर रहे, बाबा खून से बोल रहे, माधु क्या मांगता है? हमारे दिल में कुछ नहीं आ रहा। कि उसी टाइम जो असली चीज़ देने वाले थे बाबा, उसके पहले बाबा ने हमारा जो मुंह है वो बंद कर दिया, कुछ मांगने का नहीं। ऐसा मुंह को ताला लगा दिया और वो ताला लगा के किल्ली वो खुद खिस्से में रखा। और अपन जहाँ अपने मकान छोड़ के जाते हैं घर में ताला लगाते, किल्ली अपने पास रखते, वैसा बाबा ने हमारे मुंह को ताला लगा दिया और क्या किया, किल्ली उनके पास लिया। और 3 बार माधु क्या मांगता है, माधु क्या मांगता है? तो मैंने गर्दन हिला दिया, मुंह बंद कर दिया, ऐसा बोल दिया मुझे कुछ नहीं। बाबा बोले कुछ नहीं मांगता? हाँ कुछ नहीं मांगता। फिर 4 नंबर बापू। मग 4था नंबर माझा। मला म्हणले बापू तुला काय मागायचं? काय मी बी गप बसलो। उसका भी मुंह बाबा ने बंद किया
और बाबा बोले बापू तुझे क्या मांगता है बोल। तो बापू का मुंह बंद होने से बाद बापू ने गर्दन हिलाया, बाबा मुझे कुछ नहीं मांगता। फिर बोले बाबा तुझे भी कुछ नहीं मांगता? नहीं मांगता। तो उसी टाइम हाल में, मंडली हाल में क्या काम था हमें कुछ पता नहीं था, क्यों कि पुणे वाला वो सदाशिव पाटिल, हाँ शिडी देशमुख, उसको भी बुलाया था। नागपुर वाले, पुणे वाले देशमुख और सदाशिव पाटिल और सरोज भाई और आदि भाई, ये सबको, और उसी टाइम पुकार जी को बुलाया था। पुकार जी को, पुकार जी बोले तो बाबा ने नाम रखा था हनुमान। वो हनुमान के सरीका था, बहुत बढ़िया था, बहुत जाड़ा था। वो हनुमान भी मंडले हाल में बैठे थे, बहुत आदमी बैठे थे बाहर के। और उसी टाइम बाबा ने बोला तुमको कुछ नहीं मांगता? मैं बोला गर्दन से हिला दिया, कुछ नहीं मांगता। तो बाबा ने उसी टाइम जो बोला कि तुमने कुछ मांगा नहीं, तुमको मैं ऐसी चीज़ देता। चीज़ बोले तो हम बोले खाने की चीज़ होंगी, बाबा दे रहे। तो बाबा बोले तुमको मुक्ति का दान दिया मैंने। बाबा ने क्या बोला? मुक्ति दिया, मुक्ति दिया। मुक्ति बोले तो हमारे समझ में कुछ नहीं आया, नो नॉलेज। बाबा ने मुक्ति दिया, क्या दिया उसका कुछ नो नॉलेज, पता भी नहीं था। और उसी टाइम हमको जब बाबा ने घोषित किया, जाहिर किया कि तुमको मुक्ति दिया, उसी टाइम सब जितने बाबा के मंडली हाल में बैठे थे उसने ताली बजा दिया। और ताली बजा के हमको तो कुछ समझ नहीं आया, ये क्यों ताली बजा रहे, हमको तो समझ में नहीं आया। और वो ताली बजा के बाबा ने एक एक चॉकलेट दिया। उसी टाइम हमारे दोनों को चॉकलेट दिया, चॉकलेट खिला लिया और बोले जाओ तुम हाल के बाहर। हम हाल के बाहर निकले तो उसी टाइम पुकार जी हमारे पीछे भागते भागते आए। और भागते भागते आने को वो ताकत बड़ी थी पुकार जी के अंदर। हम छोटे छोटे थे, हम दोनों को उठा लिया, दोनों को उठा लिया। तो पुकार जी को हम बोले पुकार जी क्यों हमको उठा रहे, क्यों हमको ऐसे तुम घुमा रहे? तो पुकार जी बोले अरे क्यों घुमा रहे? बोले तो तुम कितने भाग्यवान हैं, कितने तुम अच्छे आदमी हैं। हम बाबा की सेवा करते हैं, हम पैसे के लिए नहीं करते, खेती के लिए नहीं करते, गाड़ी के लिए नहीं करते, मकान के लिए नहीं करते। हमको जो तुमको बाबा ने दिया है वो हमको मांगता है, बाबा हमें नहीं देते। तुम कितने भाग्यवान हैं। तो भी नॉलेज नहीं, हम पुकार जी ने छोड़ दिया। हम चले गए किचन में हमारे काम में से, और दोनों के बात चल रही। बाबा ने जो दिया, मुक्ति नाम की लड़की दिया, और वो लड़की अपने माँ बाप मेहराबाद आरन को, और बाबा यहाँ पर अपने को मुक्ति नाम की लड़की देते। हमारे इधर मुक्ति जो बोलते वो लड़की का नाम रहता है, मुक्ति नाम की लड़की रहती है। तो उसी टाइम हम बहुत बेचैन हो गए, अभी क्या करना, अभी क्या करना। See how शाम होने तक हमारे ये भेजा में, ये माइंड में रह गया मुक्ति नाम की लड़के बाबा दे रहे, मुक्ति नाम की लड़के बाबा दे रहे। उसी टाइम शाम को विष्णु मास्टर, नाम सुना होगा, विष्णु मास्टर दूध पीने के लिए किचन में आ गए और हमें बोले हमको दूध देना। तो हम दोनों भी थे, उसको दूध गर्म करके शक्कर डाल के दिया और वो वहाँ पर बैठ के दूध पी रहा था। तो उसी टाइम हम बोले विष्णु मास्टर आज जो सवेरे सवेरे बाबा ने हमको वो मुक्ति नाम की लड़की दिया है और हम बहुत परेशान हो गए, वो कैसा उसको संभालेंगे हम? तो हम बाबा को तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप बोलिए बाबा को वो मुक्ति नाम की लड़की हमको मत दो। इतना हंसने लगा विष्णु मास्टर, इसने हंसने लगा, अरे तुम बोले पागल हो गए, तुम दोनों भी पागल हो गए। हम बोले क्या, हम तो पागल नहीं हो गए, लेकिन वो लड़की नहीं मांगता हमको मुक्ति नाम की। अरे बाबा वो लड़की नहीं दिया तुमको, बाबा ने क्या दिया? हम शादी भी नहीं किया, बाबा के साथ रहता है
और बाबा की सेवा करता है रात दिन, हमको भी बाबा मुक्ति नहीं देते और तुमको ऐसी ही मुक्ति दे दी है। कितने भाग्यवान है तुम। वो तुम्हारे माइंड से निकाल दो, मुक्ति नहीं दिया बाबा ने, वो छोकरी नहीं दिया, तब हम खुशी हो रहे, इतना खुशी हो गए। ते बाबा म्हणले मुक्ती देणार आहे, ते कधी देतात? मुलगी का काय? ते म्हणले अरे तुम्ही येडे येतं, मुक्ती म्हणजे तुम्हाला काय समजत नाही. लोक कशासाठी बाबांकडे येतात? मुक्तीसाठी. किती लोक तपश्चर्या करतात, हे जेवढी मंडळी यांनी सगळं घरदार सोडून आपल्याजवळ बाबांजवळ आलेत. कशासाठी आलेत? मुक्तीसाठी. आणि ते बाबा त्यांना अजून मुक्ती काय म्हणले नाही, आणि तुम्हाला एकदम बाबा खुश होऊन मुक्ती, तुम्ही मला मुक्ती दिली म्हणले, तुम्ही खुश झाले. तर म्हणे ज्या वेळेस माणूस मरतो आणि ते सगळे इने काय म्हणते 84 फेरी फिरावं लागते, ते तुम्ही फिरणार नाही, तर तुम्ही कायम बाबांजवळ राहणार. बस, जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. बुझावे नारे. My dear friends, what can I say? There's nothing left. My dear friends, how fortunate these men, boys then and men now, how fortunate they are that their service pleased the Lord and the Lord granted them mukti. But even more fortunate they are because they didn't even know what it was. They thought it was some girl that Baba was trying to fix them up with. That kind of simplicity, childlike nature, and of course, the boon that they must have earned in their several lives before, or whatever, all those philosophical things I really don't know. But the fact remains, look at their faces. Would you, somebody says here, super duper innocence captured on camera, Baba, tusi great ho. Yes, sir. और इनके चेहरे पे ये जो मासूमियत है, दिस इनोसेंस, ये कैसा खेल है ईश्वर का कि I don't think they've still digested what they have been granted, क्योंकि उनके, ऐसे मुझे लगता है, उनके आंखों पे एक तरह का पर्दा है. Whenever they will breathe their last, that will be their last, and they will merge with Baba. और जो लोग इसके पीछे भागते हैं, उनको ये कभी नहीं मिलता है. नरसिंह मेहता गुजराती, उन्होंने कई तरी एक मेंशन किया है, ना मांगियो दौड़ तू आवे. जो चीज तुम मांगते नहीं हो वो ईश्वर तुम्हारे सामने दौड़ के ला देते हैं. This is what it is all about, my friends. I don't know how I stumbled across this movie and I just could not resist. I just could not resist sharing it with you all, because this is what Baba is all about. Simple. You may call them illiterate, you may call them governor, whatever adjectives you want to use, you may use.
but they have achieved which all of us, I don't know when we will get there. They have already got there. This is what Baba wants. This is what Baba wants. This gentleman who will be now reciting the Aarti is Madhav. He is the one who can play tabla, harmonium and sing all through that Baba's one gift that he gave him. Do watch it and enjoy it and cherish. We will be sending the link on the chat. Do watch this movie alone with 100% focus, and then let me know if you could control your tears or not. Jai Baba. जलतनी एक खुदा रत्न परमातु चलागी आस भक्तों ने के बख्शे नूर ही मातु आया मुझ मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए खुदा ना जात थी वाटे चली वे तो मेर तू तुझे माँ लिखाती कतनो तू आसे Folks, we shall now be conducting the prayers and the Aarti. Please don't go away and join us. Thank you. नहीं, कहीं आए नहीं. Can I say something? Am I on? Folks, the first time when I saw this movie and the kind of impact that it has had on me, I have no words to describe it, because this mukti and the ignorance and the childlike nature of these men, I was overwhelmed.
And I just stood before Baba's picture for quite a while. Kind of dazed is what I was. And at that time, I felt that kind of bliss which I have never felt in all my life. I hope I've tried to share this. I hope it touches your hearts as well. Thank you. अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दया में हो और सदैव परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अवरमज़ हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभु राज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर
दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक का अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाएं। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। नार जहलतनी कर कुद रत्ने फरमातु चलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरी मातु अयाम में चरण पर तुझ दरी सर खुदाना जात तीवा के फतई बैठो मेहर बातो तुझे लिख की कतन तो शेख बीने आरे भी तुझे दरी याए वहदत मारे फतनो कोई तूफातो खुदाना अमोर हवन रवन ऐसा लेक आकाश ज्ञान ईजदनु के तुझ पर महात्मा ज्ञानी चने मो तारे इरफातु खुदाना भी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके सा किया पीते पे तो हमारी नाव भर दरी तरावे तो हमें तरी हमारा ना खुदा ऐ मेहर बाबा छेनी गे बातू हमारा ना खुदा ऐ मेहर बाबा छेनी गे बातो बुझावे नार जहलतनी एकर कुद रत्ने फरमातो छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूर मातो। अवतार मेहर बाबा की जय। हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो मेहर प्रभु
मेहर प्रभु आरती अपनाओ, प्रेम दीप में दिए जलाओ, प्रेम दीप में दिए जलाओ, निविड़ अंधेरा मिटता पाओ, निविड़ अंधेरा मिटता पाओ, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ, तुम मुझको सरसाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, जीवन की हर सांस हमारी, जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, हे करुणाधर लीलाधारी, हे करुणाधर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर आरती अपनाओ, बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो गेरा, आदि अंत का लय हो गेरा, खुले नयन और दुखे सबेरा, खुले नयन और दिखे सबेरा, तुम मुझ में छा जाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा की जय। Thank you, everybody. We also would like to express our gratitude to the makers of this movie, because without their efforts, we could not have had this pleasure of watching it. Thank you, everybody. Baba with you. Jai Baba. Jai Mer Baba. Thank you. Get the video link via WhatsApp. Please, Janice, thank you. I will do that. Thank you, everybody. For Jai joining. Mer Baba.
मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा फिर भी। अवतार मेहर बाबा की जय।